ہم امن پسند ہیں، شانتی پریہ لوگ ہیں، ہم بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، ہم ٹرینیں نہیں چلا رہے، اس لیے ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ ہماری بات اس لیے نہیں سنی، انہوں نے ٹرینیں چلائی، کوئی بلڈوزر چلا، کوئی لاٹھی چلی، ایسی بے ایمانی دیکھنے کے بعد پھر اسی بے ایمان کے آگے ہم اپنی منت لے کر جائیں کہ ہماری بات سن لو، ہم پر لعنت ہے۔ رسول اعظم کی شان کا معاملہ ہے، رسول اعظم کی شان کا معاملہ ہے، اور ہم یہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، اللہ سزا دینے والا ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے منصوری سماج چینل کو اور بیل آئیکن میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ پچھلے 2 جمعے آپ لوگوں نے انتظار کیا، لیکن ہم آپ کے لیے وہ انتظار کہ میرے محبوب کے وہ غلام آ رہے ہیں جو میرے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو میرے محبوب کا سایہ نہیں تھا تو آج میرے بندوں کا بھی سایہ نہیں پڑنا چاہیے۔ تو اللہ نے آپ کے لیے شامیانہ بھی لگا دیا اور گرمی بھی لگا دی، کولر بھی لگا دیا۔ تو یہ درود شریف کی برکت ہے، اسی سے اندازہ لگا لو کہ درود میں کتنی طاقت ہے۔ بارود دنیا کو جلا سکتی ہے، لیکن درود ہی پوری دنیا میں امن قائم کر سکتی ہے۔ بیٹھے رہو بھائی، جوش میں آنے کی ضرورت نہیں۔ آرام۔ اب ہم اس وقت زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے، مختصر میں یہ بتا دینا چاہتے ہیں اسلام دشمن طاقتوں کو، رسول کی شان میں بے ادبی گستاخی کرنے والوں کو اور ان تمام لوگوں کو، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی بہت بار سنا ہے کہ گھر واپسی کر لو، سنا ہے؟ میں کہتا ہوں انہوں نے ہماری دشمنی میں نہیں کہا، ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے دیش کا حصہ سمجھتے ہیں، ہماری محبت میں انہوں نے کہا کہ گھر واپسی کر لو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں 1400 برس پہلے جو لائٹ ملی، وہ لائٹ ابھی تک تم تک نہیں پہنچی ہے۔ تم پہلے ننگے رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، یہ بتاؤ کیا اس دور میں واپس جانا چاہو گے؟ جیسے جیسے علم آتا گیا، جیسے جیسے سمجھ آتی گئی، جیسے جیسے عقل آتی گئی، جیسے جیسے انبیاء و مرسلین آتے گئے، ویسے ویسے ترقی آتی گئی، سمجھ آتی گئی، اور لوگ یہاں تک پہنچے کہ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے۔ تو اب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں گھر واپسی کر لو۔ ہمیں انہیں دعوت دینا چاہیے کہ جو لائٹ ہمیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شکل میں 1400 برس پہلے ملی ہے، جو لائٹ ہمیں غریب نواز نے دکھائی ہے، جو راستہ ہمیں بزرگان دین نے دکھایا ہے، ہم اپنے تمام بھائیوں سے دعوت
उम्मत इजाबत तो तुम सब हो। उम्मत दावत को दावत दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? मैं दावत देता हूं अपने उन तमाम भाइयों को कि आओ, जो लाइट हमें मिली है वो लाइट हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो इल्म हमें मिला है वो इल्म हम तुम तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि तुम कोई गैर नहीं हो, तुम भी हमारे भाई हो। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो तो हमारे भाई हो। हर हिंदुस्तानी आपस में भाई है और हिंदुस्तानियों को आपस में मुत्तहिद होकर रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मैं दावत देता हूं उन तमाम लोगों को जिनके दिमाग में इस्लाम से मुताल्लिक कुछ गलतफहमियां है कि इस्लाम को ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करो। मैं दावत देता हूं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, तुम्हें क़यादत करने का शौक है? मैं दावत देता हूं, हम तो वो है कि हमारे यहां ऊंच नीच नहीं है। छोटे हमारे यहां जूती गांठने वाला जब नमाज के वक्त में मस्जिद में आता है तो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा भाई है। हमारे यहाँ कोई तासुब नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है। मैं दावत देता हूँ कि इस्लाम को समझो, इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। इस्लाम ही दुनिया में अमन व अमान कायम कर सकता है। नरेंद्र मोदी, अगर तुम ईमानदारी से मोक्ष का रास्ता चाहते हो, मोक्ष के मार्ग पर आना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद इस्लाम है जो निजात का रास्ता है। निजात के रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारा दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। तुम्हें क़यादत करने का शौक है, हाकिम बनने का शौक है। हम बताते हैं कि कैसे हाकिम बनते हैं। तमाम मुसलमानों से मुखातिब हूं। हजरत उमर याद है, पूरी तफसील याद है। हजरत उमर जब हालत कुफ्र में थे तो नबी के सबसे बड़े दुश्मन थे, हैं? हर वक्त तलवार लेके घूमते थे कि जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां मिल जाएंगे कत्ल कर दूंगा। बताओ ठीक है? ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया तो मुसलमानों ने अपने सर पे बैठा लिया और खलीफा बना दिया। तो आओ नरेंद्र मोदी, कलमा पढ़ो, हम भी तुम्हें अपने सर पे बैठाने को। दावत इस्लाम जिस तरह हमारे हिंदू भाई हमें पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उस तरह हम अपने हिंदू भाइयों को आगे ले जाने की दावत दे रहे हैं। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें तरक्की की राह पर लेके जाना चाहते हैं। तो मैं हवा भी चल गई, ऐसा जुमला क्या? मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर दुनिया के लिए दुनिया में हो तो तुम जानो, लेकिन अगर मोक्ष का मार्ग तुम्हें चाहिए है तो मोक्ष किस रास्ते पर मिलने वाला है, मोक्ष का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा, निजात का रास्ता तुम्हें तलाश करना होगा। ये दुनिया तो, एक मिसाल देता हूं मैं छोटी सी, ये दुनिया एक बाउल की तरह है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये दुनिया इसमें, और हम लोग क्या हैं, चूटियों सी हैसियत है हमारी। बाउल में शहद भरा हुआ है, चूटियां
शहद खा रही हैं आस पास से बच बच के, दुनिया का मजा ले रही है, दुनिया से लुत्फानंदोज हो रही है, लेकिन जो चूंटियां लालच में आ जाती है और उस शहद को ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हैं, वो उस शहद में डूबकर मर जाती है, फना हो जाती है। तो दुनिया सब कुछ नहीं है। दुनिया के बाद जो दुनिया है, उस दुनिया के लिए हमें अपना इंतजाम करना है। उस दुनिया के लिए हमें मरने के बाद हिसाब देना है, और हमारा जवाब जरूर तलब होगा कि तुम्हें अच्छाई का रास्ता मालूम था तो तुमने अपने हमवतन भाइयों को बताया क्यों नहीं। आज मैं बड़ी जिम्मा हो गया, मैंने अपने उन भाइयों को भी दावत दे दी। अगर मेरी दावत अच्छी लगती है तो आओ, हम तुम साथ मिलकर अपने देश का काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, मिल्लत का काम करेंगे। बातें बहुत करनी है, लेकिन मुझे लगता है अल्लाह ने इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, दिल नहीं जा रहा है? तो और क्या गलत क्या बोल रहे हैं? गलत क्या बोल रहे हैं? दावत दे, वो हमें दावत देते उन्हें रोका कभी? ये नहीं आएंगे, मैं जारी रखूंगा। अरे तो मेरी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कैसे बात करूँ मैं? ये नहीं आएंगे, मैं जारी रखूंगा प्रोग्राम। ये नहीं आएंगे, मैं जारी रखूंगा प्रोग्राम, मैं खत्म नहीं करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हर बात आप अपनी बन वाले थे यार, ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है? क्यों डीएम साहब बहुत बड़े आदमी नहीं, क्यों नहीं आएंगे भाई? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा। बताओ भाई, एक बात तुमसे पूछता हूँ, एक बात तुमसे पूछता हूँ मैं, ज्ञापन नहीं दिया जाएगा? आप लोग जाएंगे, ज्ञापन नहीं देंगे? एक बात बताओ मेरे भाइयों, खामोशी से जरा मेरी बात को सुनो। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? हम ज्ञापन आज हम ये फैसला कर रहे हैं, गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। जो बोलेंगे हम बोलेंगे, और जो झेलेंगे वो हम झेलेंगे। हमारे बाद तुम्हारा नंबर आएगा, और हम तो इस ईमान के लोग हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है, ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते, क्योंकि हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। तो सुनो, ज्ञापन लेकर आया हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्ञापन इस हुकूमत को इसलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि इस हुकूमत ने कितना टाइम हो गया हमें एहतजाज करते हुए। अगर इन्हें जरा भी एहसास होता तो इन्होंने नोटिस लिया होता हमारी बात का। हमारे ज्ञापन का नोटिस लेंगे? नोटिस किसका लेंगे? हम अमन पसंद है, शांति प्रिय लोग हैं, हम भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम ट्रेनें नहीं चला रहे, इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेनें चलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली। ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो। हम पर लानत है। रसूल आजम की शान का मामला है, रसूल आजम की शान का मामला है, और हम ये हिसाब अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ते हैं।
अल्लाह सजा देने वाला है, अल्लाह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। और अगर ज्ञापन देना होगा तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे। बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, नरेंद्र मोदी को नजर नहीं आ रहा है कि पूरी दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी हो रही है, हमें तकलीफ हो रही है। हमारा देश है, उनका अकेले का देश नहीं है। तो तुम हमारे देश को बदनाम करने का काम कर रहे हो। अब तुमसे कोई बात नहीं की जाएगी, अब तुमसे तुम्हारे साथ कोई मामला नहीं रखा जाएगा। अगर शिकायत की जाएगी तो इंशाअल्लाह यूएनओ में शिकायत की जाएगी। आज ये ज्ञापन हम ना जिला प्रशासन को देंगे, न नरेंद्र मोदी को देंगे, न गवर्नर को देंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का मैं जरूर इतना एतराफ करूंगा कि जिला प्रशासन ने मेरा बहुत सहयोग किया है, मेरी बात को माना है, मेरी बात को समझा है। और मैंने भी इनका भरपूर सहयोग किया है? सहयोग हमने भी। ताली दोनों हाथ से बजती है। नरेंद्र मोदी, अगर ताली बजाना चाहते हो तो आओ, मेरा हाथ है, अपना हाथ बढ़ाओ, ताली बजाते हैं इंशाअल्लाह। है तो हमें उत्तर प्रदेश शासन से किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमें आदित्य योगी नाथ सबसे ज्यादा नापसंद थे, लेकिन एक मिनट सुनो, पूरी बात सुनो, बात सुनो यार। सबसे ज्यादा नापसंद थे नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है। लेकिन पिछले दिनों कई वाकयात ऐसे हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। उन्होंने अयोध्या में जो खुराफाती हिंदू आए थे, टोपियां लगाकर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मस्जिदों को नापाक करने के लिए, उन्होंने उन हिंदुओं को बेनकाब करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हम बुराई की बुराई करने वाले लोग हैं, लेकिन अच्छाई की अच्छाई करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम नाइंसाफी वाले लोग नहीं हैं। बरेली के कर्मचारी नगर का वाकया आपको याद होगा। एक ने अपनी रिश्तेदार 6-7 साल की बच्ची का रेप किया और उसे मरा समझ लिया, और फिर उसने हंगामा शुरू किया कि मुसलमानों ने बच्ची का रेप करके मार डाला। ये तो बरेली के प्रशासन की ऐसी सूझबूझ, जिसने उसे बेनकाब किया, खुद ही रेप किया था, खुद ही शोर मचा रहा था और दंगा कराने का माहौल उसने पूरा बना दिया था। लेकिन जिला पुलिस ने उसको बेनकाब करके जेल भेजने का काम किया। हम उनकी भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जब जब अमन का और इंसाफ का काम होता रहेगा, हम तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। बेईमानी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, न हम बेईमान हैं, न बेईमानी हम पसंद करते हैं। पानी है, थोड़ा डॉक्टर पानी का इंतजाम हुआ है? पानी है। अब एक बात और समझ लो, अगरचे मौसम भी ठीक है और शामियाना भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का एहसास है। मैं बात को
ज्यादा तवील नहीं करूंगा, इतना कह के बात को खत्म करना चाहता हूं कि जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, ये मैं 10 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, मैं 17 तारीख के जुमे में भी दिखा सकता था, और मैंने जयपुर में भी जुमा नहीं था। ये जुमे से डर गए हैं, इन्हें ये बताना जरूरी है, इन्हें ये बताना जरूरी है कि गुलामाने मुस्तफा के लिए कोई जुमा नहीं, कोई इतबार नहीं। हम हर दिन गुलाम हैं, हर वक्त गुलाम हैं। तो जो माहौल आज मैंने बरेली में दिखाया है, अगर मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के हर सूबे में ये माहौल बनाकर दिखाया जाएगा। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ऐसा माहौल हम लगातार बनाते जाएंगे। रांची की उस माँ का, अपने रांची की वो माँ याद है जिसका बच्चा 15 साल का बच्चा मार डाला गया, और किसने मारा? जिसकी जिम्मेदारी थी हिफाजत करने की, उसने मार डाला है। अगर तुम्हारी गोलियों में गोलियां अगर हिंदू और मुसलमान देख के चले, बेईमानी और ईमानदारी देख के गोली चला, चोर कौन है और शाह कौन है ये देखकर गोली चला। मैं उन नौजवानों का भी पुरजोर हिमायत करता हूं। अग्निपथ, और जब तूने नाम अग्निपथ रख दिया तो आग तो लगनी ही थी। अगले देखो कहां से लेके आए हैं अग्निपथ। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने का ठेका इस नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ है। हमारे उन बच्चों की मैं हिमायत करता हूं जो इस अग्निपथ 4 साल की बेगारी, इसके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, मैं उन लोगों की हिमायत करता हूं। और इस अग्निपथ योजना को फौरी तौर पर बंद किया जाना चाहिए। उस औरत को याद करो मेरे भाइयों, मैं रोया हूं उस औरत के इकलौता बेटा, इकलौता बेटा। और फिर वो माँ कह रही है कि मेरा बेटा इस्लाम पर कुर्बान हुआ है, मोहम्मद की शान पर कुर्बान हुआ है। इस्लाम जिंदाबाद था और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। आज हम तमाम लोग उस 15 साल के बच्चे की मां को खिराज अकीदत पेश करते हैं और उसके हक में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला उसे सब्र जमील अता फरमाए। बात काफी तवील हो गई, इतनी बात करने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन जज्बाती आदमी हूं, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। और हम जो दिल में कुछ और हो, जबान पे कुछ और हो, ये हमसे हो नहीं पाता है। ए भाई बैठ जाओ यार, लोगों को परेशान। बिल्डिंग के लिए कह दे थोड़ा सा, बिल्डिंग के लिए कह दे। तो आप तमाम लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि रसूल की अजमत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हो, रसूल के नाम पर जान देने का जज्बा तुम्हारे दिलों में है। जितनी मोहब्बत से आए हो,
जितनी मोहब्बत से आए हो, जितनी शांति से आए हो, इसी शांति से तुम्हें वापस जाना है। रास्ते में शोरो गुल नहीं करना है, नारेबाजी नहीं करना है। आजम का रास्ता है और